Hello everyone, welcome to Elitesgrid. So today we will discuss how to write an effective essay. As we know that in XAT also you have to write an essay which is going to be about for 250 words. And we also know that at this point of your life you don't have much time to prepare for different essays. So through this video we will try to help you about how you can generate your own points about different topics on the spot. So just like in your kitchen we have few spices, but with those spices you create different things. And similarly, with some little little framework or some little input, you can write multiple essays. Because now we will study how do you create points on your own, how do you create content rather than memorizing essays on different topics. So in that, like, you can have different topics. Sometimes like capitalism and democracy cannot exist together, or about nature or technology or sustainability or different topics. So you can remember things for all of them, but we will learn a framework through which you will be able to write essays at that point of time only. So in the essay, you will have introduction, body, and conclusion. Now, because the essay is quite short, only of 250 words, so you don't have to spend too much time or waste too many of your words in intro or conclusion. So ये बहुत short होना चाहिए. These have to be really short. So now let's begin with introduction. Introduction normally आप essays में कैसे लिखोगे? अगर कुछ topics अब topic पे depend करता है. You can have topics like capitalism. This is the question in some of the, I think in one of the past year papers you had this. Capitalism and democracy cannot coexist. In such type of essays you have words which can be defined. Capitalism को define कर सकते हो, like it's an economic system where the means of production are owned by private individuals, not by the state, and the motive is profit. Democracy, a form of government which is by the people, for the people, of the people. So essays में you can define the term, but there can be certain essays where defining the term can be really difficult. For example, nature and technology cannot coexist. Yeah, matlab, even if you can define it, it won't really look very attractive. Ki nature ko kaise define karo? The simpler the word, the more difficult to define it. So nature or technology, if we get such an essay that nature and technology cannot coexist, तो इस तरीके के ऐसे में ये आपको definition आती नहीं है, then what to do? One way is that you can give some real life example, because introduction has to be interesting. This is the beginning of the essay. Somebody is reading your essay, agar introduction hi achhi nahi lagi, nobody feels like reading it ahead. So introduction has to be really good in any essay, not just for like exam, but for any essay. तो एक तरीका है real life examples कैसे देंगे. जैसे nature और technology आपको दिखाना है कि they cannot coexist or something like that. So you can give example like we keep updating our cell phones regularly, but the piling electronic waste or e-waste has made our lives difficult. Or even though the modern means of transportation like cars and motorbikes, they have made our life more convenient, but they have made air more poisonous. So these examples you can actually start the topic जो आपको given है. और second way हो सकता है एनेक्डोट. इसमें क्या आएगा कि आप कोई स्टोरी, मतलब अब ऐसे ही अब बहुत छोटा है, 250 वर्ड्स का है, तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जस्ट 2-3 लाइंस, कोई बस एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यही वाला है कि नेचर एंड टेक्नोलॉजी के नॉट को एग्जिस्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक रियाज टीचर taught her a new word. Riya's teacher taught her a new word today. That is paradox. And then Riya gave an example that ma'am like nature and technology. And then we can begin. इसको inverted commas में लिख के story को फिर, and then we can ask like a question. Are nature and technology really mutually exclusive, or they are enemies of each other, or they cannot coexist? Something like that. Or they can coexist together. तो एक तरीका ये हो सकता है, but more preferable would be the first one, क्योंकि more many of you will be more comfortable in the first one. Second वाला, in case you're a creative person, then you can think of a story on the spot. But ये वाला तो definitely, first वाला is definitely going to be easy for many of us. Second वाले पे ध्यान रखना, because first of all, only creative people would think of a story जल्दी से, and secondly बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, because आपके पास word limit है. So don't waste your word limit on unnecessary stories. सिर्फ एक context set करने के होने चाहिए, 2-3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं.
और एक अनदर वे हो सकता है कोटेशन। अब कोटेशन इन केस यू रिमेम्बर इट तो ठीक है, फिट कर सकते हो, बट इन केस डू नॉट गो एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग कोटेशंस एज सच। कोई ज्यादा फायदा है नहीं कोटेशन याद करने का, क्योंकि कितनी करोगे, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। हाँ, कंक्लूजन में अगर कभी कोटेशन यूज करनी है तो दो तीन जनरल कोटेशन जो ऐसे बताएं कि वी कैन समथिंग लाइक वी कैन ऑल मेक एन एफर्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर, समथिंग ऐसी कोटेशन जो हर एक एस्से में चल जाए, बिकॉज यू कांट मेमोराइज एस्से स्पेसिफिक कोटेशन, उतना टाइम नहीं है। तो मे बी एक ऐसी कोटेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की है कि an ounce of practice is better than tons of preaching. So hence, we should all make efforts to whatever difficulty जो हमने पहले मेंशन किया उसे हटाने के लिए। ऐसे जनरल कोई कोटेशन है जो हर ऐसे में चल जाएगी तो वो ठीक है, बट आई वोंट सजेस्ट मेमोराइजिंग कोटेशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं इंट्रोड्यूस करने के। डेफिनेशन से कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके कर सकते हो, एनेक्डोट से कर सकते हो, या कोटेशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टॉपिक एंड डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एज वेल। Now, next thing, let's come to the body, which is the main thing, which is the main thing about the essay. जो main आपका content होगा वो body है। तो उसमें अब कैसे हम generate करेंगे points अपने आप, because this is something, ऐसे तो कोई भी हो सकता है। ऐसे में you should understand the meaning of what is being asked to you। वो तो मतलब that much ability you should have, that you are able to understand what you have to write. But in case you have familiarity, you understand it, then you can generate many points on your own, even without really preparing specifically for that essay. तो उसमें different approaches होते हैं। First approach में क्या होता है कि हम different dimensions, we make our essay multi-dimensional। वैसे भी ये अच्छी टिप है कि ऐसे जो का मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आप एक पॉइंट को अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अलग अलग स्फेयर से बता रहे हो, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके क्या कॉजेज है, एंड दैट मेक्स योर ऐसे इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल सोशल एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके सोशल कॉजेज क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। ठीक है, तो ऐसे यू कैन ट्राई समथिंग जैसे कि लाइक यू कैन मेमोराइज दिस ऐसे स्टीप करके कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल। तो व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि हमें इन एस्पेक्ट से भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिंग पॉइंट्स थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे वो टॉपिक था विच वाज एक पास्ट ईयर पेपर में आया था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तो लेट्स से कुछ डेमोक्रेसी के बारे में हमें कुछ भी लिखना है। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में यू हैव टू राइट समथिंग। तो उसको अलग अलग कैसे एस्पेक्ट से हम कैसे पढ़ेंगे। when you're talking about social aspects of anything, कोई भी चीज के आपके सोशल, जरूरी नहीं डेमोक्रेसी ही, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसके सोशल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो किन चीजों के बारे में ध्यान आना चाहिए, हाउ इट इज रिलेटेड टू वुमेन, अपने आप पॉइंट्स जनरेट करने के लिए, हाउ इट इज रिलेटेड टू वुमेन, हाउ इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू elderly people or children or transgenders, या how it is related to religion, caste। ये सारे पॉइंट्स होते हैं सोशल एस्पेक्ट्स। अब कैसे पॉइंट्स बनाते हैं ये चीजें, मतलब आपको हर टॉपिक में इस एंगल से सोचने की कोशिश करो। जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का विमेन से कैसे लिंक करोगे कि यस इट इज गिविंग देम, अगर मुझे पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो इट इज गिविंग देम वॉइस, रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। और अब तो न्यूज में भी है 1/3 रिजर्वेशन जो है, सो इट इज गिविंग देम रिप्रेजेंटेशन, इट इज गिविंग देम वॉइस। कुछ नेगेटिव पॉइंट करना है तो फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर करना है तो विमेन के पॉइंट से बना सकते हो कि अच्छा इवन दो विमेन गेट इलेक्टेड दे जस्ट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर देयर हस्बैंड्स। जैसे सरपंच पति वाला जो कंसेप्ट है कि इवन दो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत में हमारे पास रिजर्वेशन है फॉर सरपंच विमेन को इलेक्शन के लिए, बट देन दे जस्ट एक्ट लाइक पपेट्स, तो इट्स नॉट रियली डेमोक्रेसी। तो सोल्यूशन भी बता सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे ये डेमोक्रेसी के था, अगर मेरा कोई टॉपिक एनवायरमेंट से रिलेटेड है, मुझे उसका कोई पॉइंट जनरेट करना है तो मैं सोशल अगर साइड से सोच रही तो विमेन से अगर पॉइंट से सोच रही तो हाउ विमेन women get affected by environment the most because they are the ones who will be carrying water from a large distance. तो उससे क्या होगा, their health get affected, or they require clean fuel because they are the ones who cook for the family. So ऐसे environment को women से link करता है। किसी भी टॉपिक को आप ऐसे link करके एक पॉइंट बना सकते हो। एजुकेशन से कर सकते हो कि how education should be such that it spreads awareness about importance of democracy कि how to vote, what parameters you should keep in mind। ऐसे सिर्फ freebies से blind voting नहीं करनी चाहिए।
You should be able to judge the performance in the right manner. ऐसे इन्वायरमेंट भी अगर टॉपिक है तो एजुकेशन का पॉइंट उधर से बन सकता है कि कैसे एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ वी शुड हैव अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज. और वी कैन हैव लाइक ट्रांसजेंडर का पॉइंट भी सोशल एस्पेक्ट में आ सकता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग ट्रांसजेंडर की प्रेजेंटेशन ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा. रिलीजन है, अब रिलीजन का पॉइंट बनाना है डेमोक्रेसी से, कुछ भी आपको डेमोक्रेसी के पॉइंट जनरेट करने हैं और रिलीजन से अगर मुझे सोचना है तो कैसे सोचेंगे कि अच्छा डेमोक्रेसी इज अबाउट मेजोरिटी रूल. Majority rule means that those people who are in majority उन्हीं की गवर्नमेंट आएगी, बिकॉज इट मीन्स जिसके पास 50% ज्यादा शेयर होगा. तो जो माइनॉरिटीज हैं उनकी हमें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके इंटरेस्ट की स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है. दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं फॉर देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट. तो वहां से हम डेमोक्रेसी का कोई पॉइंट जनरेट कर सकते हैं. कास्ट से कर सकते हैं. कास्ट से कैसे करेंगे कि SC ST रिजर्वेशन है लोकसभा में, विधानसभा में, so that the historic injustice that they have faced gets reversed. तो इस पॉइंट से हमने डेमोक्रेसी के लिए पॉइंट्स बना दिए, या इन्वायरमेंट के लिए बनाने तो बना सकते हैं. जरूरी नहीं आपको हर एक पॉइंट पे बनाना है जो जल्दी जल्दी से बन रहा है उस टाइम. जैसे SC ST का बन सकता है एनवायरमेंट से, कि जो ST कम्युनिटी है वो काफी जो ट्राइबल्स है दे आर इन सिंक विद एनवायरमेंट, दे एक्चुअली हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. और अगर एनवायरमेंटल डैमेज होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो ST कम्युनिटी पे होता है, बिकॉज they depend on the minor forest produce, their livelihood depends on forest, their shelter is in forest. तो ऐसे हमने एक पॉइंट यहाँ से जनरेट कर दिया. तो ये थे सोशल एस्पेक्ट्स. ये आपको हर टॉपिक पे इसमें से एक दो पॉइंट उठा के आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट कि सारे पॉइंट्स यहीं से करने हैं, बिकॉज वर्ड लिमिट है. अब जल्दी जल्दी जिस टॉपिक से आपको समझना है उससे कर देना, बट these pillars will remain the same for different topics also. आप उनसे जनरेट कर सकते हो. अगर इकोनॉमिक साइड से पॉइंट जनरेट करना है तो उसको कैसे किसी चीज से एग्रीकल्चर से लिंक करो, या इंडस्ट्री से लिंक करो, या फिर सर्विस सेक्टर से, या फॉरेन ट्रेड कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है IMF WTO ये सब, या स्टार्टअप्स. ठीक है, ये सब पॉइंट से लिंक कर सकते हैं. जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं. क्रोनी कैपिटलिज्म से कैसे डेमोक्रेसी इम्पैक्ट होती है, बिकॉज दीज पॉलिटिशियंस आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसकी वजह से देर आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं है. या फिर कैसे एग्रीकल्चर से लिंक करने की, देखो वी हैव सो मेनी एक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ आवर कंट्री वर्किंग people, they are directly or indirectly related, they are directly or indirectly employed in the agricultural sector. तो इस वजह से एकदम से जब इलेक्शंस होते हैं their importance rises and that's why they get some attention. तो उसको भी हमने एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं. तो ऐसे, या फिर स्टार्टअप्स में क्या है, स्टार्टअप्स का जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ऐसी चीजें जो हमें अवेयरनेस दे, डेमोक्रेसी उस चीज के बारे में नहीं है, या कुछ इस तरीके से. मतलब जरूरी नहीं आपको हर एक पॉइंट पे लिखना, लेकिन जब इकोनॉमी के रिलेटेड पॉइंट आते हैं तो ये वाले पॉइंट्स, ये चीजें सोच के आप किसी भी टॉपिक पे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक होता तब मुझे कुछ जनरेट करना, तो हम एग्रीकल्चर का कर सकते हैं कि हाँ, कि इन्वायरमेंट अगर कुछ भी इश्यू होता है इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल ड्राउट्स है या फ्लड्स है, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर. और फिर पॉवर्टी या फार्मर सुसाइड्स ये सब होती है. और फिर we can talk of industrial sector की environment में कुछ issue होता है तो then you will not get raw material which is required by industries to create the finished goods. और ऐसे ही service sector में भी impact होता है. For example service sector includes like okay, अगर environment में pollution है तो pollution की वजह से we can have difficulty in educational services or other things या medical services में. तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू जनरेट विद ईच पॉइंट, बट एकदम से सडनली किसी पे भी एक पे इधर पॉइंट, एग्जाम में इस पे पॉइंट आ गया, इस पे आ गया, तो ये पॉइंटर्स अगर दिमाग में फ्रेमवर्क है ना तो इजीली हो जाता है. यू जस्ट हैव टू फिट इनटू दैट फ्रेमवर्क. अगर आपके माइंड में फ्रेमवर्क है कि मुझे कैसे कैसे सोचना है, मतलब प्रॉपर फ्रेमवर्क है, तो बस आप फिर उसमें पॉइंट्स अपने फिट करते रहते हैं और वो हो जाता है. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता. इफ यू हैव द फ्रेमवर्क देन यू कैन थिंक ऑफ दोस थिंग्स इजीली. अब ये टॉपिक्स हर
टॉपिक से आप लिंक करके फटाफट पॉइंट बना सकते हो। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो देन थिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग इजियर फॉर यू। अभी थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, बहुत अलग सा ऊपर से, बट देन इफ यू प्रैक्टिस देन थिंग्स विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। अब ये था जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। अब हम कर सकते हैं, लेट्स से पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में कौन से एंगल से सोचना होता है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप पॉलिटिकल पार्टीज का सोच सकते हैं, कुछ पॉइंट अगर बनता है तो जुडिशरी से सोच सकते हैं, या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज व्हाट? लेजिस्लेचर इज योर लोकसभा, राज्यसभा, और या एग्जीक्यूटिव विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पीएम वगैरह है, या फिर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, करप्शन, ये सब एंगल से सोच सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेसी मेरा टॉपिक है तो वी कैन टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, कि दे देमसेल्व्स डू नॉट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, दे डू नॉट प्रैक्टिस इंटरनल डेमोक्रेसी। खुद ही वो बोलते रहते हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, अंदर से खुद ही वैसे नहीं है, या फिर दे आर नॉट रियली फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स ऑन देमसेल्व्स। तो जुडिशरी का क्या कर सकते हैं कि फॉर डेमोक्रेसी जुडिशरी का पॉजिटिव रोल ये होगा कि इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑन द कैबिनेट। वो वॉच डॉग है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कुछ भी वो गलत लॉ बनाते हैं जुडिशरी उसको रिमूव कर सकती है। या नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है तो कि इट इज वेरी स्लो, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर लेजिस्लेचर में कि कैसे वी हैव जैसे लोकसभा में मेनी ऑफ आवर एमपीज हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? और या फिर करप्शन है, आरटीआई एक्ट का बोल सकते हैं कि आरटीआई का मिसयूज होता है, तो दैट इज व्हाई वी डोंट हैव डेमोक्रेसी। अब अगर टॉपिक एनवायरमेंट है तब इनको कैसे लिंक कर सकते हैं? जैसे जुडिशरी में वी कैन हैव दिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो जुडिशरी का पार्ट जो स्पेशली एनवायरमेंटल लॉस को डील करता है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट वी आर लाइक सो मच फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बनाना है तो कि भाई देयर लॉट ऑफ डिलेज इन मेनी केसेस, और बहुत सारी एक्ट्स तो यहाँ पर एप्लीकेबल भी नहीं है, इसकी जुरिस्डिक्शन में है भी नहीं। या फिर हम एनवायरमेंट का अगर मुझे लेजिस्लेचर से लिंक करना है तो हमारी बहुत सारी एक्ट्स हैं, लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विच शोज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सपोर्ट्स क्लीन ग्रीन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है हमारी, ये सब चीजें। या फिर अगर नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना है तो कैसे लॉज का मिसयूज होता है, एनवायरमेंटल लॉज का मिसयूज होता है, वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और सच थिंग्स। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो गए। अब किसी चीज के, सो वी हैव लर्न सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट से कुछ लिंक करना है तो ये वाले पॉइंट से लिंक कर लेना। पोल्यूशन से कुछ, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से बहुत चीजें लिंक हो जाएंगी। और वी टॉक अबाउट ई वेस्ट, या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी है, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, कुछ पॉइंट्स अगर इनसे बन जाए तब हम सोच सकते हैं। देन इन्वायरमेंट के जो है उसमें इस वाले एंगल से ज्यादा सोच सकते हैं। और वी कैन हैव टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में स्टार्टअप्स किस फील्ड में, डेमो मतलब जैसे एनवायरनमेंट में है, अगर स्टार्टअप्स का मुझे कोई पॉइंट बनाना है तो वी कैन से कि स्टार्टअप्स ज्यादातर आईटी फील्ड में, बट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फील्ड में कम है। और वी नीड टू एनकरेज, अगर सोल्यूशन देना तो वी नीड टू एनकरेज मोर स्टार्टअप्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया। या बिग डेटा, जैसे बिग डेटा को एनालाइज करके यू कैन गेट लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन जिससे राइट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में बिग डेटा का बहुत जैसे यू रेड अबाउट दैट केस, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस जो था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, ये मतलब इट वाज दे वर एक्यूज्ड दैट they were using internet and lot of data to influence the mind of voters, तो जिस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। तो दिस शोज हाउ टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, या एनवायरमेंट के लिए भी डेटा चाहिए, बिकॉज यू कैन फोरकास्ट मेनी ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज बिफोर इटसेल्फ, लाइक साइक्लोन्स, तो हम लोगों को पहले इवैक्यूएट करके लाइफ बचा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इन पॉइंट से आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे लिंक करके उसी टाइम बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। दूसरा एक अप्रोच होता है, जैसे अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, उसका व्हाट इज दैट थिंग, उसको अच्छे से समझा सकते हैं। व्हाई दैट थिंग एग्जिस्ट, व्हेन व्हेन डू वी नीड इट, या व्हेन डिड इट कम इन एग्जिस्टेंस, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु आर द पीपल रिलेटेड टू इट, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी, वो क्या चाहते हैं, कुछ भी ऐसे करके। ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, अगर हम इनको आंसर करेंगे
तो भी हमें उस टॉपिक का 360 व्यू मिल जाता है और हमें कंटेंट जनरेट कर सकते हैं कि वो चीज क्या है क्या नहीं है। दूसरा तरीका होता है स्टेक होल्डर्स अप्रोच होता है। स्टेक होल्डर्स अप्रोच, इसमें कौन कौन वो लोग हैं, फिर हम उनसे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, विमेन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स। अब कैसे कैसे करेंगे, अच्छा विमेन कैसे इम्पैक्ट होती है एनवायरमेंट से, दे हैव टू गो टू कलेक्ट वुड एंड वाटर। तो अगर एनवायरमेंट में इशू होगा तो उनका काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, दे हैव टू रियली वर्क हार्ड, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन पे होगा। या क्लीन फ्यूल चाहिए कुकिंग के लिए, अदरवाइज दे विल गेट रेस्पिरेटरी डिजीजेस। एसटी एसटी कम्युनिटी जो है, दे देयर शेल्टर और देयर लाइवलीहुड, दे सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि हनी या छोटी मोटी वुड या बाकी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं टू लिव। और या फिर कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एसटी कम्युनिटी की होती है। फिर गवर्नमेंट क्या क्या रोल है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट एक्ट्स बनाई हुई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और वी हैव ट्राइब ग्रीन ट्राइब्यूनल है। तो गवर्नमेंट का क्या, या वो सही से प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का इको क्लब्स हो सकते हैं स्कूल में, या छुट्टियां हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मेनी टाइम्स इन दिल्ली स्कूल्स वर शट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सोचो वो कैसे इंपैक्ट होते हैं या वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। सो देयर वर डिफरेंट वेज टू क्रिएट पॉइंट्स। तो हमने बॉडी की, अब जो ऐसे की बॉडी उसके बारे में बात कर लिया। तो वन थिंग आई हैव टू से कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पॉजिटिव साइड भी होती है नेगेटिव साइड भी होती है, तो यू आंसर बोथ ऑफ देम, यू शुड आंसर बोथ ऑफ देम। ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव जो ज्यादा आता है फॉर नेचुरली वही लिखोगे, लेकिन दोनों एस्पेक्ट्स बताना, इससे दिखेगा दैट यू आर अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग, बिकॉज एवरीथिंग विल हैव टू साइड्स। तो बोथ एस्पेक्ट्स मतलब पॉजिटिव बता के अगर नेगेटिव थोड़े से बताने हैं, लेकिन अगर नेगेटिव बता रहे हैं देन यू मस्ट टेल सोल्यूशन ऑल्सो। और वो नॉर्मली कंक्लूजन में होगा। इफ यू आर टेलिंग दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स देन यू मस्ट टेल द सोल्यूशन ऑल्सो, अदरवाइज वी कैन हैव मेनी पीपल हु टेल द प्रॉब्लम्स, यू शुड बी द पर्सन हु कैन टेल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन मैक्सिमम टाइम्स ना आपका यही होना चाहिए, जो जो आपने पूरी नेगेटिव बोल दी कि दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट हैपनिंग, तो conclusion में government can do this, people can do this, people should do this, and definitely we will get our desired state. तो जैसे मैंने एक कोटेशन बताई थी दैट ounce of practice is better than tons of preaching. तो you should act, all of us should act. तो इस तरीके का कुछ कंक्लूजन होना चाहिए. So this was your essay. तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि कैसे तरीके हो सकते हैं, डेफिनेशन से हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ना पूरे ऐसे में कहीं ना कहीं करोगे तो इट विल मेक योर ऐसे मोर इंटरेस्टिंग। रियल लाइफ एग्जांपल हो गए, एनेक्डोट हो गया, या कोटेशन हो गई। बॉडी में हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ लिए, स्टीप अप्रोच, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, या WH वर्ड्स के बारे में सोच के, या स्टेक होल्डर सोच के। और अनदर थिंग कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लिखो। और कंक्लूजन, कंक्लूजन शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, सोल्यूशन और पॉजिटिव, कंक्लूजन को पॉजिटिव ही रखना, नेगेटिव पे मत एंड करना। सो दिस वाज हाउ यू कैन राइट एन एसे, and I think this will be quite helpful, but you must practice it, then only you can understand it and utilize it, otherwise it's just useless for you. So I hope that you would have enjoyed this video. So thanks a lot, and I hope it will be really helpful to you.